Hello students, good morning. Good morning. Good morning, sir. Good morning. How are you all? Fine. Okay, so today I start our new chapter, chapter number 12, linear programming. Okay students? Yes, okay. So let's start. So first chapter number title, chapter number 12, linear programming. Okay. So in this chapter, first of all we have to see how to find a graph method or how to find a graph or how to draw the graphs. Okay. For that, first of all you may write title mathematical formulation of LPP. Mathematical formulation of the LPP, that means linear programming problem. LPP means linear programming problem. Okay. फर्स्ट ऑफ ऑल आपको टाइटल देना होगा मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन ऑफ द लिनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, दैट मींस इन अ शॉर्ट फॉर्म L.P.P. ओके. और जो हमारे फ्रेंड्स नहीं है क्लास में उन लोगों के लिए मैं पीडीएफ फाइल थ्रू ये जो डेफिनेशन है ना वो मैं आपको पीडीएफ फाइल थ्रू आपको भेज दूंगा. ओके, अंडरस्टैंड? ओके. फर्स्ट definition objective function. Title though objective function. What is objective function? Let's see. Right, linear function capital Z is equals to linear function capital Z is equals to here capital Z is equals to ax plus by. Capital Z is equals to ax plus by, where small a comma small b, where small a comma small b are constants, comma which has to be maximized or minimized is called a objective function. ओके. सो इसका यूज हम जब हमारा जो ग्राफिकल मेथड होगा, ओके, हमारा सिलेबस कैसा है तो 30% लेस है, बराबर ना, मतलब 70% सिलेबस है, उसमें से 12.2 और मिसलेनियस एक्सरसाइज 12 को कट किया है, और जो हमारा 12.1 है उसमें से 4 क्वेश्चंस भी कट किया है. तो जो रिमेनिंग है या रिमेनिंग एग्जांपल्स है विच इज डिपेंडिंग ऑन ग्राफिकल मेथड. तो जब मैं आपको एग्जांपल समझाऊंगा, बराबर ना, तब हम उसको डिटेल में समझेंगे कि व्हाट इज ऑब्जेक्टिव फंक्शन. समझ में आ गया? आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि z इज इक्वल टू ax प्लस b, ये फॉर्म है ना, इसको हम क्या बोलेंगे? ऑब्जेक्टिव फंक्शन. ओके, z इज इक्वल टू ax प्लस by इज कॉल्ड ऑब्जेक्टिव फंक्शन. नंबर 2, डिसीजन वेरिएबल्स. नंबर 2, डिसीजन वेरिएबल्स. DECISION VARIABLES. Decision variables. Start करो. Yes, sir. Decision variables. Number 2, decision 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 variables. Okay, what is decision variable? Let's see. Z is equals to ax plus by. Z is equals to ax plus by is a linear objective function. Full stop. जो हम ऑलरेडी हमें पता ही है कि z is equal to ax plus b क्या है? is a linear objective function. Okay, full stop. Variables x and y are called decision variables.
I hope you understand. Okay, so this is the objective function in which we see the variables, that means x and y, both are called डिसीजन वेरिएबल्स. ओके, आपको जो हमारा नाम है डिसीजन वेरिएबल्स, उस पे से आपको फाइनलाइज तो कर ही दिया होगा कि वेरिएबल्स दैट मींस which is x, y, z something are called variables. Okay, and this is our objective function in which there are two variables are present, x and y, which is called in is decision variables. Okay, समझ में आ गया? Number 3, constraints. Constraints. Number 3, constraints. C-O-N, S-T-R-A, I-N-T-S, constraints. उसको हम दूसरी लैंग्वेज में इनइक्वालिटीज भी बोल सकते हैं. क्या बोल सकते हैं? इनइक्वालिटीज भी बोल सकते हैं. Which we have already learned in 11th standard, chapter number 6, linear inequations. Understand? Okay. Okay. The definition of constraints. Write down. The linear inequalities. The linear inequalities. The linear inequalities or equations or restrictions on the variables of a LPP. अब हम शॉर्ट फॉर्म में ही लिखेंगे, बराबर ना? लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, इसको हम शॉर्ट फॉर्म में क्या लिख सकते हैं? LPP. On the variables of LPP are called constraints. Next point. The conditions x greater than equal to 0, y greater than equal to 0 are called. The conditions x greater than equal to 0, y greater than equal to 0 are called non-negative restrictions. जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में ही बोला था कि कंस्ट्रेंट्स का मीनिंग क्या होगा? हमारी जो लीनियर इक्वेशन हमें क्वेश्चन में दिए जाएंगे, बराबर ना? जो ऑलरेडी लर्न स्टैंडर्ड 11 चैप्टर नंबर 6 linear inequalities. Okay, how type of we have constraints? There are two variable also and one variable also. Okay, for example 2x plus 3y greater equal to 6. Okay, or 3x plus 2y less or equal to 6, or x greater equal to 3, y greater equal to 3. These types of inequalities are called constraints. Okay, जो हमें क्वेश्चन में ऑलरेडी दी जाएंगे. Okay, हमें क्वेश्चन में कौन कौन सी चीजें दी जाएंगी? फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव गिवन ऑब्जेक्टिव फंक्शन एंड रिलेटेड टू द कंस्ट्रेंट्स, मतलब लीनियर इक्वेशंस हमें क्वेश्चन में दिए जाएंगे. ये दो जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन और कंस्ट्रेंट, ओके, ये दोनों हमें क्वेश्चन में दिए जाएंगे और बोलेंगे कि मैक्सिमाइज द फंक्शन और मिनिमाइज द फंक्शन. चलो उसके बाद तो रिमार्क्स. रिमार्क्स में टाइटल ग्राफिकल मेथड ऑफ सॉल्विंग LPPS, that means linear programming problems. L.P.P और उसके ऊपर S लिखे ना, ऐसे LPPS, linear programming problems. ओके, चलो तो अभी हमें जो हमारे एग्जाम्पल सॉल्व करने हैं, बराबर ना, उसका मेथड है हम कैसे सॉल्व करेंगे. ओके, तो सबसे पहले लिखो let us graph the constraints stated as let us graph the constraints
stated as linear inequalities. Linear inequalities. और उसके नीचे लिख लो 5x plus y less or equals to 100. Result number 1. X plus y less or equals to 60. Result number 2. X greater equal to 0, 3, and y greater equal to 0, 4. उसके नीचे 1 by 1 एक के नीचे एक ये कंस्टेंट लिख लो. Done? Next time, the graph of this system, the graph of this system in a bracket shaded region, shaded region, bracket over consists of the points common to all half planes, consists of the points common to all half planes determined by the inequalities 1 to 4. The inequalities 1 to 4. Okay, 1 to 4. Okay, number 1, feasible region. अब ये फिजिबल रीजन क्या है उसका डेफिनेशन दे देंगे. FEASIBLE फिजिबल रीजन. Okay, you already familiar with physical region because you already learned in a chapter number 6 in a standard 11. Feasible region means solution region. The common portion in a graph. Okay, समझ में आया? Okay, सिर्फ यहाँ पे नाम चेंज हुआ है, बाकी फिजिबल रीजन क्या है? सॉल्यूशन रीजन ही है. ओके, मतलब उसका डेफिनेशन द कॉमन रीजन, जैसे मैंने अभी बोला बराबर ना, कॉमन पोर्शन. ओके, द कॉमन रीजन डिटरमाइंड बाय all the constraints including non-negative constraints x comma y greater or equal to 0 of LTP is called feasible region. In a bracket solution region. The other name is solution region. जो हमने 6th चैप्टर में ऑलरेडी सीखा है बराबर ना, सॉल्यूशन रीजन में कैसे हाउ टू फाइंड सॉल्यूशन रीजन. ओके, तब हम क्या करते थे, हमारे पास लीनियर इनइक्वालिटीज हमें दिए जाते थे, रिलेटेड टू लीनियर इक्वेशन हम फाइंड आउट करके टेबल क्रिएट करते थे और पॉइंट्स फाइंड आउट करते थे और उस पॉइंट को प्लॉट कर देते थे ग्राफ पर. ओके, तो सभी के जो भी लाइंस हम ड्रॉ करके जो भी कॉमन पोर्शन होता था, ओके, तो उसको हम क्या बोलते थे फाइनली? सॉल्यूशन रीजन. नंबर 2, इनफिजिबल रीजन. Infeasible region.
सिर्फ आई नहीं लगाना है आगे, ओके। द रीजन अदर देन visible region is called an invisible region. That's it. जो हमारा कॉमन पोर्शन होगा, बराबर ना, सॉल्यूशन रीजन वाला जितना भी पोर्शन होगा, उसके अलावा जो भी रीजन हमारा एक्सेप्ट, बराबर ना, जो रिमेनिंग पोर्शन होगा उसको हम क्या बोलेंगे? इनफिजिबल रीजन। दैट्स इट। नेक्स्ट नंबर 3, फिजिबल सॉल्यूशंस। Points within and on the boundary of the visible region represent फिजिबल सॉल्यूशन। समझ में आ गया? जो हमारा कॉमन पोर्शन होगा, जो भी कॉमन पोर्शन, उसके अंदर जितने देयर आर मेनी पॉइंट्स, ओके, इन आवर फिजिबल रीजन एंड आल्सो बाउंड्री पॉइंट्स, बराबर ना, जो हमारा लाइन हम ड्रॉ करते हैं, इंटरसेक्शन पॉइंट होगा, दो लाइन को हम ऐसे ज्वाइन करेंगे, बराबर ना, तो हमारे पास ये क्या होगा कि हमारा पॉइंट इंटरसेक्शन पॉइंट होगा, और ये जो लाइन है ये बाउंड्री पॉइंट्स होंगे सभी, बराबर ना। तो बाउंड्री पॉइंट्स एंड आल्सो द फिजिबल सॉल्यूशन, ओके, तो उसको हम क्या बोलेंगे? फिजिबल सॉल्यूशन। रिप्रेजेंट फिजिबल सॉल्यूशन। इनफिजिबल सॉल्यूशंस which are not visible, बराबर ना। चलो उसका डेफिनेशन, एनी पॉइंट आउटसाइड द फिजिबल रीजन इज कॉल्ड एन इनफिजिबल सॉल्यूशन। समझ में आ गया? जो हमारा कॉमन पोर्शन होगा, बराबर ना, उसके बाहर का जितने भी पॉइंट्स होंगे, ओके, उसको हम क्या बोलेंगे? फिजिबल सॉल्यूशन, बराबर। वो मैं आपको एक पहला एग्जांपल जब मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा ना, ये सभी डेफिनेशन वन बाय वन मैं आपको उसमें समझाई दूंगा, ओके, तो आपको सभी माइंड में क्लियर हो जाएंगे। क्लियर मतलब ये वाला क्लियर नहीं, ये वाला क्लियर, अंडरस्टैंड? ओके। ऑप्टिमल फिजिबल सॉल्यूशन, बस लास्ट टू, बराबर। ऑप्टिमल फिजिबल सॉल्यूशन, पेज नंबर 508, ऑप्टिमल फिजिबल सॉल्यूशन। फर्स्ट 2 लाइन्स दिखा, ओके, उसमें से लिख लो, कॉपी दैट 2 लाइन्स, कॉपी कैट। एक बार मैं बोल ही देता हूं, एनी पॉइंट इन द फिजिबल रीजन दैट गिव्स द ऑप्टिमल वैल्यू in a bracket maximum or minimum of objective function is called an optimal feasible solution. And the last definition, which is corner point. वो क्या है वो भी मैं आपको ग्राफ जब मैं आपको ड्रॉ करके समझाऊंगा तभी मैं समझा दूंगा। और कॉर्नर पॉइंट की डेफिनेशन आपको कहां मिलेगी? 508 जो पेज है ना उसके नीचे देखो, एग्जैक्ट एकदम नीचे एग्जैक्ट 2 पॉइंट्स आपको दिया ना, एक स्टार और डबल स्टार, तो जो स्टार वाला है ना वो लिख लो, वो लाइन लिख लो, वो लाइन कॉपी कर लो। A point of a feasible region is a point in the region which is the intersection of 2 boundary lines. बराबर? समझ में आ गया? Good. Is called corner point.
इंटरसेक्शन ऑफ टू बाउंड्री लाइंस। चलो तो ये सब हो गया हमारा जो इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस था वो, बराबर। चलो नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट अवर एग्जांपल्स। ओके, 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, समझ में आ गया? 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, डेफिनेटली कंपलसरी 101% जितने भी सम्स है हमारे बुक में से उसमें से एक तो हमारा आएगा ही। अंडरस्टैंड? लेट्स सी। चलो सबसे पहला सम है, ओके, टाइटल सॉल्व द फॉलोइंग लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स। सॉल्व, हाँ ग्राफ बुक में, ग्राफ बुक में, ग्राफ बुक, हाँ ओके स्टूडेंट्स, आपके पास ऐसा ग्राफ बुक होगा। ओके, आप फर्स्ट पेज जैसे निकालोगे, यहाँ पे आपका नेम और वो सब होगा, और यहाँ पे एक इंडेक्स लिखा, यहाँ पे टॉपिक लिखा है, यहाँ पे डेट लिखा है, नंबर ऑफ पेज, और ये युवा का है, ये युवा का है, बराबर। एज योर चॉइस, आपको जो अच्छा लगे, जो ठीक लगे वो आप ले सकते हैं, पर मेरे पास युवा है, बराबर ना। आप ऐसे भी देखोगे तो भी आपको क्या कुछ अलग दिखेगा, बराबर। और ये नोनिंग यहाँ पे लिखा है, मिला? ओके, जैसे भी आप फर्स्ट पेज ओपन करोगे तो यहाँ पे क्या होगा, आपका नॉर्मल पेज है और यहाँ पे ग्राफ पेज है। तो मैं जो भी आपको लिखाऊंगा, बराबर, तो वो आपको यहाँ पे लिखना है और ग्राफ आपको यहाँ पे ड्रॉ करना है। समझ में आ गया? जो भी आपका डिस्क्रिप्शन होगा डिपेंडिंग ऑन अवर एग्जांपल, वो आप यहाँ पे लिखेंगे और जो हमारा ग्राफ होगा यहाँ पे आएगा। समझ में आ गया? ओके, एंड यूज कलरिंग पेंसिल्स और क्रेयॉन्स मच बेटर देन अवर बॉल पेन्स। ओके, चलो क्वेश्चंस लिखो। सॉल्व द फॉलोइंग LPPS ग्राफिकली। सॉल्व द फॉलोइंग LPPS, that means linear programming problems, graphically. चलो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वो मैं यहाँ लिखता हूं, एक्सरसाइज 12.1 का फर्स्ट एक्सरसाइज 12.1 फर्स्ट, मैक्सिमाइज z is equals to 3x plus 4y subject to the constraints, subject to the constraints x plus y less or equals to 4, x greater equal to 0, y greater equal to 0. ओके, पेन डाउन। चलो ये हमारा फर्स्ट एग्जांपल है, बहुत इजी है, मेथड एकदम सिंपल है, बराबर। हमें क्या मैक्सिमाइज द फंक्शन, मतलब हमें मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सिंपली बोलूं तो मैं मुझे क्या फाइंड आउट करना है, वी हैव टू फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू, ओके, डिपेंडिंग ऑन दिस कंस्ट्रेंट्स और यूजिंग दिस कंस्ट्रेंट्स। चलो हमारे पास क्वेश्चन में क्या दिया है, बोलो। एक तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन दिया है, हियर इज योर ऑब्जेक्टिव फंक्शन, एंड हमें कंस्ट्रेंट, दैट मींस इक्वेशन, लीनियर इक्वेशंस हमें दिया है, these three equations, ओके। डन, ओके। चलो तो आंसर में सबसे पहले इसको यहां पे डिनोट कर देते हैं। आंसर हियर the given objective function z is equals to 3x plus 4y, result number 1, and the given constraints x plus y less or equals to 4, result number 2, x greater equal to 0, 3, and y greater equal to 0, 4. ओके, सो हमने क्या किया, हमें जो क्वेश्चन में जो इंफॉर्मेशन दी थी, मतलब ऑब्जेक्टिव फंक्शन एंड कंस्ट्रेंट, बराबर, दोनों को हमने यहाँ पे क्या कर दिया, डिनोट कर दिया और लिख दिया, बराबर।
ओके, अभी हमें सबसे पहले ये ऑब्जर्व करना है, कंस्ट्रेंट पर ऑब्जर्व करना है, कंस्ट्रेंट पर। ओके, यहाँ पे x ग्रेटर इक्वल टू 0 है, यहाँ पे y ग्रेटर इक्वल टू 0। ओके, इसका मीनिंग क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ x ग्रेटर इक्वल टू 0 एंड y ग्रेटर? दैट मींस नॉन नेगेटिव कंस्ट्रेंट्स, बराबर, एंड व्हिच गिव्स अस अ सॉल्यूशन इन अ फर्स्ट क्वाड्रेंट, बराबर। तो हमारा जो बाउंडेड सॉल्यूशन होगा, बराबर, वो कहां होगा? इन अ फर्स्ट क्वाड्रेंट। समझ में आ गया? ओके, बिकॉज ऑफ दीज टू कंस्ट्रेंट और फाइनल सॉल्यूशन रीजन और फिजिबल रीजन गिव्स अस इन अ फर्स्ट क्वाड्रेंट। ओके, तो ये जो लाइन है वो यहां पे हम लिख देते हैं। चलो लिखो, हियर द फिजिबल रीजन, हियर the visible region, here the visible region bounded in first quadrant, bounded in first quadrant because x greater equal to 0, y greater equal to 0, बराबर ना। हमने रीजन भी दे दिया क्यों हमें फर्स्ट क्वाड्रेंट पे मिल सकता है, इसलिए, बराबर। समझ में आ गया? ओके, चलो नाउ the linear equation related to the in equation we have x plus y is equals to 4, क्योंकि हमारे पास एक ही ऐसा कंस्ट्रेंट है जो 2 वेरिएबल में है, बराबर ना। ओके, सो क्रिएट अ टेबल डिपेंडिंग ऑन दिस लीनियर इक्वेशन x y 0 0। अगर हम x is equal to 0 put in this equation, we get y is equals to, if we put x is equal to 0 in this equation, we get y is equals to 4. And similarly, if we put y is equal to 0 in this equation, we get x is equals to 4. Okay, therefore, plot the points 0, 4 and 4, 0 on the graph. चलो यहां तक सबको समझ में आ गया? क्या क्या हमने सिंपली जो हमें क्वेश्चन में जो डिटेल्स दिए थे, जो भी इंफॉर्मेशन उन्होंने स्टार्टिंग में यहाँ पे हमने लिख दी, बराबर, और वन बाय वन हमने उसको रिजल्ट नंबर 1 2 3 4 हमने दे दिया। ओके, उसके बाद हमारा जो फाइनल सॉल्यूशन फिजिबल रीजन होगा वो कहां होगा? तो बाउंडेड इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। व्हाई? बिकॉज ऑफ देयर आर we have given two non-negative constraints, x greater equal to 0 and y greater equal to 0. That's why we finalize that our solution region bounded in first quadrant. Okay, हमने फाइनलाइज कर दिया कि हमारा जो भी फाइनल फिजिबल रीजन होगा और फिजिबल सॉल्यूशन होगा वो कहां मिलेगा? हमें फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही मिलेगा, बराबर। और उसका रीजन क्यों? बिकॉज कि हमारे पास दो ऐसे कंस्टेंट है जो नॉन नेगेटिव है, मतलब x ग्रेटर इक्वल टू 0 और y ग्रेटर इक्वल टू, मतलब दोनों का जो भी आंसर होगा इक्वल्स टू 0 या उससे बड़ा होगा, मतलब पॉजिटिव साइड होगा। समझ में आ गया? ओके, चलो ये हम ग्राफ पर प्लॉट कर देते हैं। तो अभी हम यहाँ पे ग्राफ देखने वाले हैं। चलो मेरे पास ये बहुत बड़ा नहीं, छोटा सा स्केल है, बराबर, इसका हम यूज करते हैं। दिख रहा है यहाँ पे कितने हैं? 1 से लेके 100 तक के नंबर से, बराबर। ओके, हाँ कुछ ज्यादा ही बड़ा है, छोटा है। चलो ओके, दिस इज योर y axis, ओके, एंड दिस इज योर x axis. Done? ओके ओके, प्लॉट द पॉइंट। सबसे पहले हम नंबरिंग कर देते हैं यहां पे 0 1 2 3 4 and 5 x and y. Similarly on y axis 1 2 3
4 and also 5. ओके, चलो हमारे पास दो पॉइंट्स है वो यहाँ पे हम प्लॉट कर देते हैं। सबसे पहला पॉइंट हमारे पास कौन सा है? 0,4। दैट मींस x is equal to 0, y is equal to 4. सो ये पॉइंट होगा हमारा, सॉरी ये x is equal to 0, y is equal to 4 and 4 0, दैट मींस ओके। चलो अभी ये दो पॉइंट्स को हम क्या करेंगे? ज्वाइन। दिखा बराबर। और ये जो लाइन है उसका नाम क्या है हमारे पास? उसका x प्लस वाई ग्रेटर इक्वल टू, अच्छा लेस और इक्वल टू, ओके लेस और इक्वल टू 4। चलो समझ में आ गया? ओके, अभी हमें क्या करना है? चेक करना है x प्लस वाई का वैल्यू 0 0 पुट करके। अगर हम इस पे 0 0 पुट करेंगे तो वी गेट 0 प्लस 0 लेस और इक्वल टू 4 विच इज ट्रू, which is true, बराबर है। इसका मतलब क्या है? इंक्लूडिंग 0 0 वाला जो रीजन होगा हाफ प्लेन, वो हमारा सॉल्यूशन रीजन होगा। समझ में आ गया? किसका? तो कि कंस्ट्रेंट नंबर 1 का, क्योंकि ये दोनों का तो हमारे पास फाइनल पता ही है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में फाइनल आंसर आएगा, बराबर। x greater equal to 0, दैट मींस वी गेट फाइनल आंसर x एक्सिस greater to, मतलब ऊपर वाला अपर हाफ प्लेन, एंड y greater equal to 0, दैट मींस दिस इज y एक्सिस greater to, दैट मींस राइट साइड हाफ प्लेन। So finally, combine these two constraints, we get final solution is in a first quadrant. मतलब ये हमारा फाइनल लिमिट होगा। समझ में आ गया? ओके, जो x greater equal to 0 है उसका आंसर क्या मिलेगा? अपर हाफ में x एक्सिस के ऊपर वाला पोर्शन, और जो y greater equal to 0 है वो y एक्सिस के राइट साइड वाला पोर्शन। और दोनों का अगर कॉमन पोर्शन देखेंगे वो कौन सा मिलेगा हमें? तो फर्स्ट क्वाड्रेंट वाला ही हमें मिलेगा। समझ में आ गया? अभी फर्स्ट क्वाड्रेंट हमारा फाइनल हो गया इतना, बराबर। अभी ये जो थर्ड कंस्ट्रेंट है नंबर 1, तो अभी उसमें हमने क्या किया? 0 0 पुट किया, हमें क्या मिला आंसर? 0 लेस और इक्वल टू 4, मतलब वो 4 0 से बड़ा है विच इज 2। इसका मतलब कंटेनिंग 0 0 वाला जो सॉल्यूशन रीजन होगा, मतलब ये हमारा लाइन है। ओके, तो दिस लाइन gives us two half planes, upper half plane and lower half plane. So finally our solution region is, बोलो कौन सा आएगा? Lower half plane, and the final answer is okay, this is your final solution region or visible region. okay, अभी हमें कॉर्नर पॉइंट्स की बात करनी है, बराबर ना? कॉर्नर पॉइंट्स कौन से मिलेंगे उसकी बात कर लेते हैं। चलो एक पॉइंट हमें कौन सा मिलेगा? ये मिलेगा। कॉर्नर पॉइंट्स की डेफिनेशन क्या है? इंटरसेक्शन ऑफ टू लाइंस, इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ टू लाइंस, बराबर। तो ये हमारा एक्स एक्सिस वाला लाइन है और ये जो हमने फाइंड आउट किया वो लाइन है, तो दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट आपको क्या दिख रहा है? 4,0. The first point is, and the second y axis and ये लाइन, ये दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट मतलब कौन सा मिलेगा? 0,4, and finally the intersection point of x axis and y axis, that means 0 0. ये भी हमारा एक कॉर्नर पॉइंट हुआ ना? समझ में आ गया? ओके, डन। तो फाइनली हमें कौन से कॉर्नर पॉइंट्स मिलेंगे? 0 0, 0 4 एंड 4 0। चलो ओके, ये जो पोर्शन है जो मैंने हाईलाइट किया वो हमारा क्या होगा? फिजिबल रीजन। और ये अदर देन ये ऊपर वाला ये सब क्या है? इनविजिबल रीजन। ओके, एंड ऑल द पॉइंट्स
lies in this feasible region, we get feasible solution and also on boundary points. मतलब ये सभी पॉइंट्स, ये जो लाइन पर के पॉइंट्स है, ये सभी पॉइंट्स, ओके. एंड अदर देन मतलब ऑल दिस पॉइंट्स, अदर देन मतलब ये जितने भी यहाँ पे पॉइंट्स है वो क्या बोलेंगे, इनफिजिबल सॉल्यूशन. डेफिनेशन क्लियर हो गई, ओके. एंड कॉर्नर पॉइंट की डेफिनेशन क्या होगी, कॉर्नर पॉइंट मतलब इंटरसेक्शन पॉइंट, बराबर ना, द इंटरसेक्शन ऑफ टू लाइन, बराबर, द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू लाइंस, मतलब दो लाइन जहां पे भी इंटरसेक्ट करेंगे तो वो पॉइंट हमारा क्या होगा, तो कॉर्नर पॉइंट. ओके, डन. सभी डेफिनेशंस क्लियर हो गई. चलो ये ग्राफ ड्रॉ कर लो, बराबर. तो फाइनल हम हमारा टेबल देख लेंगे. चलो अभी हमें एक टेबल क्रिएट करना है, बराबर ना. वो कैसे क्रिएट करना है वो भी आपको समझा देता हूं, बराबर. चलो ओके. चलो यहाँ पे जो फर्स्ट वाला जो हमारा रो है उसमें क्या होगा, कॉर्नर पॉइंट. सेकंड वाला जो है वो हमारा होगा फिजिबल, सॉरी, ऑब्जेक्टिव फंक्शन. ऑब्जेक्टिव फंक्शन अगर आप नहीं लिखोगे और z इज इक्वल टू जो आंसर लिखा है वो भी चलेगा, मतलब z इज इक्वल टू क्या है हमारे पास, 3x प्लस 4y. ओके. चलो कॉर्नर पॉइंट्स कौन कौन से हमारे पास, 0 0 0 0 4,0. चलो अभी आपको क्या करना है, फर्स्ट कॉर्नर पॉइंट पुट इन आवर ऑब्जेक्टिव फंक्शन, वी गेट z इज इक्वल टू 0, z is equal to put 0,4 16 and again z is equal to 12. ओके, तो आपके पास 3 वैल्यूज अवेलेबल है, z is equal to 0, z is equal to 16, z is equal to 12. एंड हमें क्वेश्चन में क्या किया है, मैक्सिमाइज बोला है, मतलब मैक्सिमम नंबर कौन सा होगा, देखने से बोलो. सो दिस इज योर फाइनल मैक्सिमम. ओके, फाइनल मैक्सिमम वैल्यू. ओके, डन. दिस इज योर फाइनल आंसर. ओके, एक बार आप टेबल क्रिएट कर लो, उसके बाद में फाइनल आंसर. So the maximum value is 16 at 0,4. So final answer is, write down, hence the maximum value of z is 16 at the point 0,4. So here you complete your first 12 point first example. Okay, first sum is complete here. Hence the maximum value of z is 16 at the point 0,4. So this is your final answer. Okay, so I think understand how to do the sum. Okay, how to draw the graph. Okay, now how to finalize the feasible region. समझ में आ गया. सो ये पूरा का पूरा सॉल्यूशन एक बार
देख लो। Okay, the next sum is example number 1. Maximize z is equal to 4x plus y subject to the constraints x plus y less or equal to 50, 3x plus y less or equal to 90, x greater equal to 0, y greater equal to 0. So here we have given two constraints which in which there are two variables, okay, depending on two variables x comma y. So first of all, answer here. The given objective function, that means OF, z is equals to 4x plus y, result number 1, and also given that constraints x plus y less or equals to 50, number 2, 3x plus y less or equal to 90, number 3, x greater equal to 0, number 4, and y greater equal to 0, number 5. Here, okay, because of these two non-zero constraints, our final solution is given bounded in first quadrant. So here, the feasible region bounded in first quadrant, because x greater equal to 0 and y greater equal to 0. Now the linear equation related to the given inequations, we have x plus y is equals to 50 and dx plus y is equals to 90. So the table is x, y, put x is equal to 0, y is equal to 50, y is equal to 0, x is equal to 50. The second table is x, y. If you put x is equal to 0, y is equal to 90, y is equal to 0, x is equal to 30. Okay? Plot the points 0, 50, 50, 0 and 0, 90, 30, 0 on the graph. चलो अभी हम क्या करने वाले हैं, ग्राफ ड्रॉ करने वाले हैं। Y-axis and origin. Okay, so when we have the maximum number is 90, so we take how much difference? 10 difference. Okay, 10 difference is enough. So 10, 20, 30, 40, 50, 60,
70 and 100. 70 के बाद डायरेक्ट 100. 80, 90 are silent in between 80 and 70 and 100. Okay. Okay. On y-axis 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 100. Okay. On x-axis 1 centimeter is equal to 10 unit. Okay. And y-axis also 1 centimeter is equal to 10 unit. Okay. Because of we take a 10 difference. Done? Okay. Plot all the points on a graph. We get first point is 0, 50. That means x is equal to 0, y is equal to 50. The point is here. And similarly 50, 0 is here. Okay, join 2 points with this small scalar. Okay? Yes. So I use green marker to join these 2 points. So the name is of these inequality is x plus y less or equal to 50. X plus y less or equal to 50. Now plot the second 2 points. Zero comma 90. That means this point. And 0, 30 this point. अभी एक बात अब बाजू सबसे पहले आपको जो फर्स्ट लाइन आप ड्रॉ करते हैं ना उसका सॉल्यूशन रीजन फाइनलाइज कर देना है बराबर पर कैसे put 0, 0 in equation number 2 we get 0 less or equal to 50 which is 2 that means our solution region is containing 0, 0 okay so नीचे वाला हाफ रीजन आएगा so अब तक का हमारा सॉल्यूशन कितना हो गया इतना ये ट्रायंगल हमारा फाइनल सॉल्यूशन हो गया ओके अभी हमारा जो लास्ट कंस्ट्रेंट है कौन सा वाला इक्वेशन नंबर 3 उसका फाइनलाइज करते हैं सो जॉइन दिस 2 पॉइंट and the name of this line 3x plus y less or equal to 90 3x plus y less or equal to 90 okay put 0 0 in second equation we get third equation we get 0 plus 0 that means 0 less or equal to 90 containing 0 0 ये हमारा लाइन है which is divided into 2 parts lower half plane and upper half plane so the final answer is lower half plane containing 0 0 because if we put 0 0 in third equation we get 0 less or equal to 90 which is true okay so the solution region for third equation which is containing 0 0 that means lower half plane so finally जो हमारा पोर्शन कट होगा वो कितना कट होगा सबसे पहला हमारा फाइनल कितना था ये ट्रायंगल हुआ था ओके ये हमारा ट्रायंगल कंटेनिंग 3 कंस्ट्रेंट्स बराबर ना 3 कंस्ट्रेंट्स को कंबाइन करने के बाद हमारा फाइनल ये ट्रायंगल हुआ ओके उसमें से ये नया लाइन हमने ड्रॉ किया तो कौन सा वाला पोर्शन कट होगा तो ये वाला कट हो जाएगा समझ में आया ये वाला निकल जाएगा क्योंकि यहां से हमारा लाइन पास हुआ ना
और उसका सॉल्यूशन ये वाला है। तो फाइनल हमारा जो सॉल्यूशन रीजन होगा वो मैं यहाँ पे ड्रॉ करता हूं। तो द फाइनल सॉल्यूशन रीजन इज ओके। ओके डन। So this is your final answer or final graph. So now finalize the corner points. The first corner point is 0,50, 0,0. उसके बाद कौन सा आएगा 30,0 और ये जो बीच वाला इंटरसेक्शन पॉइंट है वो कौन सा है नंबर 20,30. सबका यही है 20,30. So finally corner points. First is 0,0. Second is 0,50. Third is 20,30. The last one is 30,0. Put one by one all corner points in our objective function. We get z is equals to first 0. Second z is equals to we get 50. Third z is equals to 4 plus 80 plus 30 110. And the last z is equals to 120. Sorry, 120. So the maximum number is 50,0. 50,0. Okay, 50,0. नहीं नहीं वो नहीं आएगा क्योंकि हमें तो कॉर्नर पॉइंट्स ही चाहिए, फिजिबल रीजन वाला कॉर्नर पॉइंट्स। मतलब यही है ना, ये सब पॉइंट्स आएंगे सिर्फ। समझ में आया 50,0 क्यों नहीं आएगा वो समझ में आया? क्योंकि वो तो निकल जाएगा। वो पोर्शन कौन निकालेगा? ये लाइन हमारा जो 3x + y लेस और इक्वल टू 90 वाला जो लाइन है ना, वो उसको कट कर देगा। समझ में आया क्यों 50,0 नहीं आएगा? ये आंसर आपको पता चला क्योंकि ये जो लाइन हम ड्रॉ करते हैं बराबर, ओके, कौन सा वाला 3x + y लेस और इक्वल टू 90 वाला, इसमें हम 0 0 पुट करेंगे तो हमें आंसर क्या मिलेगा 0 लेस और इक्वल टू 90। दैट मींस कंटेनिंग 0 0 वाला सॉल्यूशन नीचे हमारा आएगा, मतलब लोअर हाफ में, बराबर ना। कंटेनिंग 0 0 में दैट मींस लोअर हाफ में, क्योंकि 0 0 लोअर हाफ में है। ओके, ये हमारा लाइन है बराबर, लोअर हाफ में हमारा मिलेगा। ओके, सो इसका मतलब क्या है? सबसे पहले हमारा फाइनल कौन सा हुआ? विद द हेल्प ऑफ 3 कंटेंट्स, मतलब फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ। तो उसका फाइनल क्या हुआ? ये ट्रायंगल हुआ, बराबर ना। अभी जैसे हमने ये लाइन ड्रॉ किया तो ये पोर्शन तो निकल जाएगा, इतना पोर्शन कट हो जाएगा, इसका मतलब 50,0 भी कट हो गया। और यहां से क्या होगा? तो ये पोर्शन यहां से यहां तक आएगा, क्योंकि ऊपर वाला भी कट ही हो जाएगा बिकॉज ऑफ हमारे लिमिटेशंस क्या है यहां से। ओके, सो फाइनल हमारा कौन सा? ये जो आपको दिख रहा है फिगर, ये हमारा फाइनल होगा। दैट मींस 50,0 नहीं आएगा। कॉर्नर पॉइंट्स, एक बार फिर से डेफिनेशन देख लो। कॉर्नर पॉइंट्स, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ कॉर्नर पॉइंट? एक बार मैं रीड करता हूं कॉर्नर पॉइंट की डेफिनेशन। द कॉर्नर पॉइंट इज अ पॉइंट ऑफ अ फिजिबल रीजन, अ पॉइंट ऑफ अ फिजिबल रीजन इज अ पॉइंट इन द रीजन व्हिच इज इंटरसेक्शन ऑफ टू बाउंड्री लाइंस। बराबर, फिजिबल रीजन बोला है आपको क्वेश्चन में। फिजिबल रीजन, फिजिबल रीजन व्हाट? दैट मींस ये वाला, समझ में आ गया? ये जो आपका यहाँ पे एक क्या बोला है, मतलब एक फिगर ड्रॉ हो गया, बराबर ना। ये आपको फिगर दिख रहा है, उसके बाउंड्री पॉइंट्स कौन कौन से हैं?
एक तो ये होगा क्योंकि यहाँ पे ये दो लाइन इंटरसेक्ट हो रहा है, फिर यहाँ पे ये दो लाइन इंटरसेक्ट हो रहा है, और यहाँ पे ये दो लाइन, सिमिलरली यहाँ पे ये दो लाइन इंटरसेक्ट. दैट मींस फाइनल 4 points are corner points, and for that the final answer is Z 0, 50, 110, 120. So the maximum value is कौन सा आएगा 120. ओके Okay, so final answer is 120 maximum. Hence, final answer. The maximum value of Z is 120 at the point 30, 0. Okay? ओके तो अभी हमने ग्राफिकल मेथड पर डिपेंडिंग दो सम्स हमने कंप्लीट किए, दोनों के दोनों डिपेंडिंग ऑन मैक्सिमम मतलब मैक्सिमम नंबर हमने फाइंड आउट किया था, मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट किया था. अभी आपके लिए 3 सम मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूँ. एग्जांपल नंबर 2 मिनिमाइज, एग्जांपल नंबर एक्सरसाइज 12.1 सेकंड एंड एक्सरसाइज 12.1 थर्ड. सो तीनों के तीनों एग्जांपल्स आपको कंप्लीट करने हैं होमवर्क में. सिर्फ फर्क इतना है कि मैंने जो आपको समझाया था उसमें हमने मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट किया था. यहाँ पे दो फर्स्ट तो एग्जांपल नंबर 2 एंड 12.1 का सेकंड, उसमें आपको मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करना है. मतलब कॉर्नर पॉइंट्स आप पुट करेंगे हमारे ऑब्जेक्टिव फंक्शन में, उसके बाद आपको z की वैल्यूज मिलेगी, उसमें से आपको मिनिमम नंबर कौन सा है वो आपको ऑब्जर्व करना है और वो फाइनल आंसर आपको लिख देना है. समझ में आ गया? ओके सो आज यहाँ पे हम स्टॉप करते हैं. मिलते हैं नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट लेक्चर में. तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड टेक केयर ऑफ योर सेल्फ. थैंक यू.